Hello to all those who are watching this video. This is the video for the students of class 12th biology, and Nivedita is here by taking a topic population interaction, and the topic is from the chapter number population interaction. Okay. In the previous video I have covered population growth. Okay, growth models. So in this video we will just study about how the different population they interact with each other. So first know what is population interaction. So all animals, plants and microbes in a biological community interact with each other. ओके कम्युनिटी में जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये सब आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं. दीज इंटरेक्शंस में बी बेनिफिशियल, डिट्रीमेंटल और न्यूट्रल टू वन स्पीशीज और बोथ. जितने भी इंटरेक्शन है बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, डेट्रीमेंटल हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, किसी भी एक स्पीशीज के लिए या दोनों के लिए भी. सो देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन: predation, competition, parasitism, commensalism, mutualism, and amensalism. Okay, so these are the different types of interaction. So let's see. First, a little bit introduction in short. Here you will get, let you consider two species, species A and species B is there. Okay. So if we talk of mutualism, so here both the species are benefited. Okay, both are benefited in this way. And if we talk of competition, okay, so one is benefited and other is in loss. Okay, and predation, actually competition is because competition is of different types. It may be species between two species, or it may be among the members of the same species. So this is also possible, or maybe competition between or with the environmental condition also. Okay, and predation, here one is benefited and other is in loss. Parasitism, again one is benefited and other is in loss. And commensalism, one is in benefit but other is neutral. And amensalism, one is in loss and other is not having any effect, that is neutral. So begin with predation. Predation means it is an interspecific interaction, means दो species के बीच का interaction है, where one animal kills and consumes the other weaker animal. एक जो है वो दूसरे को मार देता है. प्रे प्रेडेशन सभी को पता है, प्रे प्रेडेटरशिप. ओके, तो प्रे प्रेडेटर एवरीवन नोज, शिकार एंड शिकारी. ओके, तो इसमें एक को फायदा है, दूसरे को नुकसान है. तो प्रेडेटर का रोल क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू हायर ट्रॉपिक लेवल. Okay, that is position it is getting in the food chain. It controls the prey population also, is it? जैसे कि एक moth होता है जो वो prickly pear cactus को कंट्रोल में रखता है, वो उसको खाता है. अदरवाइज चारों तरफ prickly pear cactus जो है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी. And biological control of agricultural pest also, this is also done. Maintain species diversity by reducing intensity of competition among competing prey species. Okay, over exploitation of prey by the predator results in extinction of prey by the prey and predator. Okay, यदि बहुत ज़्यादा predator यदि बहुत strong है तो धीरे धीरे वो prey की species को खत्म कर देगा. जब वो प्रे की स्पीशीज को खत्म कर देगा तो वो खुद भी खत्म हो जाएगा, विल नॉट गेट द फूड. ओके,
और इसी उसमें कुछ ऐसे देर आर डिफेंस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन को कम करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। ओके जैसे इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग की बात करते हैं तो ये कैमोफ्लेज को शो करते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई, दिस इज पॉइजनस वन, पॉइजनस है तो इसको कोई खाएगा नहीं। ओके सो दिस इज सो। इंसेक्ट्स भी कई बार हम देखते हैं लीव्स पे बैठे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, उनका कलर भी ग्रीन हुआ करता है, कुछ का शेप भी कुछ इस तरीके का होता है, दे कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड। सो प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफरेंस, प्लांट्स में किस तरीके के मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफरेंस उनके पास हैं, ओके जिससे वो अपने आप को बचा पाते हैं। जैसे कैक्टस और अकेशिया, ये सब के पास कांटे होते हैं, इसलिए इनको ब्राउजिंग एनिमल्स जो है वो खाते नहीं हैं इनको, तो ये बचे रहते हैं। एंड सम ऑफ, जैसे कि कैलोट्रोपिस का प्लांट है, नेक्स्ट स्लाइड में कैलोट्रोपिस का प्लांट देखने मिलेगा, वो कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है और स्टोर करके रखता है, इसलिए उसको कोई खाएगा नहीं क्योंकि उसका टेस्ट वो डिसटेस्टफुल है। ओके फिर निकोटिन है, कैफीन है, क्विनाइन है। ओके ये सब जो है ये इनके टेस्ट अच्छे नहीं हुआ करते हैं, इसलिए ब्राउजिंग एनिमल्स जो हैं वो इनको खाते नहीं हैं, तो ये बच जाते हैं। ये कैलोट्रोपिस का प्लांट है। ओके डिसटेस्टफुल है ये, इसलिए इसको एनिमल्स जो हैं, जो जानवर जो हैं वो प्लांट्स और ये खाते हैं, वो इनको नहीं खाया करते हैं। Excuse me. Why predators are prudent? If we have a question like this, क्यों prudent है? Because over exploitation of prey by the predator result in extinction of prey and predator, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, इसीलिए predators prudent हैं। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरीके का डिफरेंस हुआ करता है नेचर में। Competition, interaction either among individuals of same species or between individuals of different species, कैसा भी हो सकता है ये। It occurs among closely related species but not always true, हमेशा ऐसा नहीं होगा। Okay? एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज या मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज के बीच में एक्चुअली क्या होता है, उनके जो रिसोर्सेज, उनकी जो डिमांड है वो सेम है, इसलिए उनका कंपटीशन जो है वो टफ हुआ करता है। अनरिलेटेड स्पीशीज ऑल्सो कॉम्पीट, लाइक फ्लैमिंगो एंड फिश कॉम्पीट फॉर जू प्लैंक्टॉन्स। ओके ये दोनों तो रिलेटेड नहीं है बट दोनों ही जू प्लैंक्टॉन्स को खाया करते हैं। फीडिंग efficiency of a species reduces due to other species even resources are plenty, like we have the example of abundant tortoise. Okay evidence for competition, competitive release क्या होता है? okay हमारे पास क्या evidences है? तो species distribution restricted to small areas due to competitively superior species, कुछ कुछ स्पीशीज होती है वो उसी एरिया में फैली होती है और आगे जगह नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिस इज ड्यू टू द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज, राइट। एंड गॉज का कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? Two closely related species competing for same resources cannot coexist as the competitively inferior one will be eliminated. ऐसा गॉस का कहना था कि यदि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं और वो सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करती हैं, तो गॉस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गॉस, उसका कहना था कि इसमें से जो सुपर स्पीशीज होती है, जो सुपीरियर स्पीशीज होती है वो सर्वाइव करती है और जो इन्फीरियर होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। ओके रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होती है? टू कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज अवॉइड कॉम्पिटिशन, जो देखो हमको इसी का आंसर यही मिल गया। ओके टू कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज अवॉइड कॉम्पिटिशन बाय डिफरेंट फीडिंग एंड फॉरेजिंग पैटर्न, ऐसा कहना था मैकार्थर का। मैकार्थर का कहना था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज़ है तो वो उनमें से एक एलिमिनेट हो जाएगा और एक बच जाएगा, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि जो कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज़ होती हैं वो कंपटीशन को रिड्यूस कर सकती हैं, करती हैं बाय डिफरेंट फीडिंग पैटर्न, एंड उनकी जो फॉरेजिंग पैटर्न है वो भी अलग अलग हुआ करते हैं। ओके सो ये मैकार्थर का कहना था। थैंक यू सो मच।